چلیے شروعات کرتے ہیں آج ایک نئے سیشن کے ساتھ. پیارے بچوں، آج ہمارا ارتقاء ماحول کا مطالعہ حصہ دوم سے تیسرا سبق زمین پر کے جاندار کی معلومات حاصل کریں گے، جس میں ہم زمین کی پیدائش مطلب زمین کا وجود کیسے ہوا، پھر زمین پر جانداروں کی پیدائش یعنی زمین پر جاندار کیسے پیدا ہوئے، اور زمین پر جانوروں کی دنیا. مختصر یہ کہ زمین پر جانوروں کی دنیا کیسے آباد ہوئی. ان تین اجزاء کی معلومات ہم تفصیل سے حاصل کریں گے. پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق کا نام ہے زمین پر کے جاندار. جیسے کہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ زمین پر کے جاندار اس سبق میں آپ کو تاریخ، جغرافیہ اور سائنسی وجوہات بھی ملیں گے. مطلب یہ سبق تاریخ، جغرافیہ اور سائنس سے منسلک ہے. بچوں، یوں تو آپ نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی، لیں گے اور سمجھیں گے. زمین کی پیدائش. سر آپ کو آواز آ رہی؟ ہیلو. یس یس. آ رہی نا؟ ہاں. زمین کی پیدائش، پہلا جز ہے زمین کی پیدائش. زمین کی پیدائش کا یہ نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں طرح طرح کے سوالات ابھرتے ہیں. مثلا جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ کیسے وجود میں آئی، کب وجود میں آئی، آج وہ جیسی ہے ابتدا سے ویسی ہی تھی یا بدل گئی، اگر یہ تبدیلی ہو گئی ہے تو خاص تبدیلیاں کون سی ہیں. قدیم زمانے سے ہی آسمان پر جگمگاتے اجسام فلکی یعنی آسمان میں موجود چیزیں انسان کو اپنی جانب متوجہ کر رکھا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین کا وجود ہوا تھا اور انسان مختلف اجسام سرشتی کے بارے میں سوچا کرتا تھا. چاند کو دیکھ کر انسان نے ان کی پوجا شروع کر دی اور روشنیوں کو جادوئی روشنیاں سمجھتا تھا. آج کے دور میں انسانی جستجو کی وجہ سے جہاں سائنس کی دیگر شاخوں نے تیز رفتار سے ترقی کی ہے، وہیں فلکیات میں بھی یعنی آسمان کی معلومات میں بھی روز نئی نئی دریافتیں ہوئی ہیں. آج فلکیات کے حوالے سے جتنا علم موجود ہے اس کا تصور کرنا بھی قدیم زمانے کے انسان کے لیے محال تھا. دوسرے سیاروں اور ستاروں کی جھرمٹ یعنی کہکشاں کا علم ہمارے لیے یقیناً تجسس اور دلچسپی کا باعث رہا ہے. یعنی سائنسدانوں کا دماغ ایک کریٹو مائنڈ رہا ہے، ہمیشہ نئی نئی کھوج میں لگے رہتے. لیکن بلا شبہ ہمارا سیارہ زمین بھی انتہائی ایک منفرد سیارہ ہے جو کہ کئی سائنسی راز اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا. زمین سورج سے روشنی حاصل کرتی ہے، اس لیے سیارہ کہلاتی ہے. ستارے خود چمکتے ہیں، سیارے دوسروں کی روشنی حاصل کر کے چمکتے ہیں. زمین کو منفرد
हेलो सर। जी बोलिए, आवाज आ रही है। एक मिनट। सितारों और तारों व सितारों की झुरमुट मतलब कहकशाओं का इल्म हमारे लिए यकीनन तजस्सुस और दिलचस्पी का बास रहा है। साइंसदानों का दिमाग, जैसे कि मालूम है बच्चों आपको, एक क्रिएटिव माइंड रहा है, हमेशा नई नई खोज में लगा रहता है। आज के दौर में इंसानी जस्तजू की वजह से जहाँ साइंस की दीगर शाखों ने तेज रफ्तार तरक्की की है, वहीं फल्कियात में भी आसमानी मालूमात में रोज बरोज दरियाफ्तें हुई हैं। आज फल्कियात के हवाले से जहाँ इल्म मौजूद है, उसका तस्वुर करना भी कदीम जमाने के इंसान के लिए मुहाल था। बच्चों, दूसरे सैयारों और क्रिएटिव माइंड रहा है, हमेशा नई नई खोज में। सर मेरी आवाज नहीं, बार बार स्क्रीन वो खराब हो। आ रही है आपकी आवाज, आप बोलती जाइए मैडम। सर आप ऐसा आ रहा है कि म्यूट हो रहा है, आप मुझे करें। लेसन कंटिन्यू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज। अच्छा ठीक है। एक मिनट सर। फिर बाद में हट जा रहा है क्यों? लेकिन बिलाशुबा हमारा सैयारा जमीन भी एक फरीद सैयारा है, जो कि कई साइंसी राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। जमीन सूरज से रोशनी हासिल करती है, इसलिए सैयारा कहती है, मगर सैयारे दूसरों की रोशनी हासिल करके चमकते हैं ना बच्चों, क्या आपको मालूम है ना? जमीन को मुफ्त सैयारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाहिद सैयारा है जहाँ इंसानी जिंदगी मौजूद है। जमीन पर हवा, पानी, मिट्टी वगैरह भरपूर अज्जा शामिल हैं। यहाँ आज इंसानी जिंदगी के अलावा मुख्तलिफ मुकामात हैवानात इंसान बसे हुए हैं। बच्चों, गज के जमीन की जुगर्फी क्यों ऐसा हो रहा है? जो सब तुम्हारी आवाज आ रही, स्क्रीन शेयर कीजिए बोले, यहाँ से प्रॉब्लम है कुछ। हाथ में ले, इसको हाथ में लेकर कर। कायनात की हर शय का नुक्ते आगाज है, इसी तरह जमीन का ज़हूर भी किसी न किसी शक्ल में हुआ होगा। कहते हैं कि ऐसा मान लिया जाता है कि सूरज के गिर्द सैयारे नहीं, गर्द के बादल गर्दिश करते थे। फिर ये गर्द के बादलों ने चट्टान की शक्ल इख्तियार कर ली और कई मिलियन के अरसे के बाद मुख्तलिफ सैयारों ने जन्म लिया और निज़ाम शमसी का वजूद हुआ। और इस निज़ाम शमसी में हमारा ज़मीन भी शामिल है। निज़ाम शमसी में आपको मालूम है बहुत सारे सैयारे हैं, जैसे अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन,
मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, नेपच्यून, प्लूटो। साइंसी तहकीकात की रोशनी में ऐसा मान लिया जाता है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक तेज रफ्तार बादल खला में पैदा हुआ। ये बादल इंतहाई गर्म हवा और गर्द गुब्बार से मिलकर बना था। बच्चों, तेज रफ्तार दायरी गर्दिश की वजह से इसके टुकड़े हुए और बेशुमार सैयारे वजूद में, जिसमें हमारा जमीन का भी ज़रूर। उस वक्त जमीन हरी भरी नहीं थी प्यारे बच्चों, पूरी जमीन लावे का खौलता हुआ समंदर थी। और उस वक्त क्या आप जानते हैं बच्चों, हवा यानी फिजा इंतहाई जहरीली थी, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ किस्म के गैसेस शामिल थे। और उस वक्त कहते हैं कि कुछ चट्टानी मलबे जमीन के मदार पर चक्कर लगाने लगे, जो जमीन की बाहम कशिश की वजह से रफ्ता रफ्ता एक पुर्रे की शक्ल इख्तियार कर ली। और उस वक्त बच्चों जानते हैं हमारा चांद का ज़हूर हुआ, और चांद उस वक्त जमीन से, मालूम है बच्चों, बहुत ही करीब था। इसलिए जसामत में बड़ा भी दिखाई देता था और रोशन भी दिखाई देता था। जमीन की महवरी गर्दिश निहायत तेज होने की वजह से उस वक्त, पता है बच्चों, एक दिन में सिर्फ 6 घंटे होते थे, यानी 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात। फिर 3,900 मिलियन साल कबल, जानते हैं बच्चों, निजाम शमसी और उसके सैयारों की पैदाइश के दौरान पैदा होने वाली चट्टानें जमीन की मकनातीसी मैदान में दाखिल हुई और जमीन पर बरस पड़ी। आखिरकार ये चट्टानें अपने साथ न सिर्फ मादनियात लाई, बल्कि जिंदगी के लिए अहम तरीन शय पानी भी साथ लाई। फिर उस वक्त जमीन पर बड़ी मिकदार में समंदर की सूरत में पानी जमा हो गया। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं दूसरा जुज, जमीन पर जानवरों की पैदाइश। जमीन पर आबी ज़खायर पैदा होने के बाद पानी में मुख्तलिफ किस्म के आबी या खलवी जानदार पैदा हो गए, जिसमें सबसे पहले या खलवी जानदार का नाम आपने सुना होगा, प्रोटोजोआ। फिर धीरे धीरे इस या खलवी जानदार से कसीर जानदार पैदा हुए, जो कि आंखों से बच्चों आसानी के साथ दिखाई नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जसामत बहुत ही बारीक होती थी, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, दिखाई दे रहे, कितनी बारीक, जिसको नंगी आंखों से हम देख ही नहीं सकते थे, बड़ी ही मुश्किल होती थी। इसलिए उस वक्त उसको आसानी के साथ देखने के लिए खुर्दबीन की जरूरत पड़ी। और पता है बच्चों, इस तरह साइंसदानों ने खुर्दबीन तैयार किया। अब हम चलते हैं जमीन पर जानवरों की दुनिया की तरफ। हमारा तीसरा जुज है जमीन पर जानवरों की दुनिया। कहते हैं बच्चों, जमीन पर पाए जाने वाले उस वक्त जानवरों की दुनिया अजीब थी। दुनिया में जानवर और नबातात होते थे, लेकिन बहुत ही खौफनाक और जहरीले। इन जानवरों की दुनिया में हम लिए आते हैं जानवरों के बारे में मालूमात हासिल करने। तकरीबन 28 करोड़ साल पहले सांप और रेंगने वाले जानवरों का जमीन पर वजूद हुआ, जो बहुत ही जहरीले हुआ करते थे। और बच्चों, क्या आप जानते हैं, उस वक्त 25 करोड़ साल पहले डायनासोर्स जैसे डेल डोल एकदम खतरनाक पहाड़ की तरह, और उनका सर कैसा होता है तो बहुत ही छोटा, ये कद से बहुत ही देव का कद कैसा होता है ना, एकदम खौफनाक, बड़े बहुत बेतुके दिखाई देते थे। और उनका जिस्म बहुत ही बड़ा बेडोल था, लेकिन खतरनाक थे। आइए अब हम मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि स्क्रीन में आप कितनी प्यारी प्यारी तस्वीरें देख रहे हैं ना, कि बाज़ जानवरों में हम देखते हैं कि अमल तनफ्फुस होता है। अमल तनफ्फुस का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। वो नाक से सांस लेते हैं और नाक से सांस छोड़ते हैं। हम इंसान का भी अमल तनफ्फुस के जरिए होता है ना। अब देखिए, जैसे स्क्रीन में बेशुमार जानवर दिखाई दे रहे हैं, उसमें बताया गया है कि कुछ जानवर जो है नक्ल हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं।
لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو ہے نا انڈے دیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں. انڈے مثال کے طور پر مرغی دیتی ہے اور بچے کون پیدا کرتا ہے؟ ہاتھی، جیسے کہ اسکرین میں دکھائی دے رہا آپ کو. اس کے علاوہ ہاتھی، گھوڑا، بھینس اور گائے یہ جو ہے اپنے جیسے جاندار پیدا کرتی ہے. انہیں عمل تولید کہتے ہیں. اس عمل کو عمل تولید کہتے ہیں کہ اپنے جیسے جانور کو پیدا کرنا. چلیے بچوں، ابھی ہم مزید معلومات حاصل کریں گے. کس کے بارے میں؟ مریخ کے بارے میں. بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ جو مریخ جو سیارہ ہے یہاں پر زمین کی طرح زندگی کا امکان ہے، لیکن اب تک مکمل ثبوت حاصل نہیں ہوئے بچوں. سائنسدانوں نے تو بہت کوشش کیا ہے لیکن اب تک ناکامیاب ہو گئے. اس کی ایک خاص وجہ کیا ہے؟ خاص وجہ اب ہم آگے پڑھتے ہیں. مانا جاتا ہے کہ مریخ کے بیرونی سطح پر بھی آتش فشاں پہاڑ، وادیاں، ریگستان اور برف سے ڈھکے ہوئے قطبی علاقے موجود ہیں. جیسے کہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیراگراف دیا ہوا ہے، اب ذرا دھیان سے دیکھیے. مریخ پر پانی، آکسیجن موجود ہے ایسا سائنسدانوں کا کہنا ہے، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ، ہوا کا تناسب جو کہ انسانی زندگی کے لیے ممکن نہیں. انسان کو جینے کے لیے کون سی گیس چاہیے؟ آکسیجن. لیکن یہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ، ہوا کا تناسب زیادہ ہے، لیکن وہاں کی مٹی بہت ہی خوب ہے نباتات کی افزائش کے لیے، ایسا سائنسدانوں کا کہنا ہے. وہاں کی مٹی میں نباتات کی افزائش کے ضروری اجزاء بھی شامل ہے، ایسا انہوں نے پتہ لگایا اور ان کا کہنا ہے. جانداروں کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم شے پانی ہے. کیا ہے؟ پانی ہے. لیکن یہاں پر پانی کی کمی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسانی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے یہاں پر کوشش کیا کہ انسانی زندگی بس جائے، لیکن پانی ناکافی ہونے کی وجہ سے اس کے تصور کی تصدیق اب نہیں ہو پائی ہے. اب اس کے متعلق ایک تاریخی واقعہ یہ ہے کہ 5 نومبر 2013 کو بھارت نے خلا میں خلائی جہاز روانہ کیا اور یہ مہم 24 ستمبر 2014 کو کامیاب ہوا. بچوں، یہ جو سبق ہے آپ کو کیسا لگا؟ امید کہ اچھا لگا ہوگا، اور میرا یہ سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے. میں ابھی آپ لوگوں سے سوالات کروں. اگر آپ کے پاس کتاب ہوگی تو پلیز کتابیں کھولیے اور اپنے مائک کو بھی کھولیے. انمیوٹ کیجیے، انمیوٹ مت کیجیے، کھولیے اور میرے سوال کا جواب دم دھیان سے دیجیے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کتاب کی مشق کو کھولے ہوں گے اور دھیان سے اس کا مشاہدہ کیجیے اور پڑھیے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں. ہاں بچوں، میں پہلا سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے. ہر سوال کا ایک جملے میں جواب دیجیے. جیسے کہ دیکھیے اسکرین پر پیج دکھائی دے رہا ہے سوال کا کہ الف سوال ہے، یک خلوی جاندار کو دیکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بیٹا کوئی بتائے گا؟ یک خلوی جاندار کو دیکھنے کے لیے کی ضرورت ہوتی ہے. خوردبین کی ضرورت اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، ویری گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا، شاباش. چلیے بتائیے بچوں مجھے کہ اب یہ یک خلوی جو جاندار ہے نا، اس کا میں نے نام کیا بتایا تھا؟ سب سے پہلے جو یک خلوی جاندار پانی میں پیدا ہوا تھا اس کا نام کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟
प्रोटोजोआ। चलिए मैं बता देती हूँ। अब सवाल जो बे है, यह खलवी जानदार किस तरह वजूद में आया, कोई बताए बच्चों मुझे? अगर जिसको जवाब मालूम है आराम से बताइए, घाई मत कीजिए। यह खलवी जानदार किस तरह वजूद में आए? कौन सा सबक समझा, लोग नहीं मालूम तुझे? मालूम तो साइंस का है तो बस साइंस का कौन सा? हाँ, पानी में ना, जब जमीन पर पानी का वजूद हुआ तो तभी खलवी जानदार पैदा हुए ना। इतना सिंपल और आसान सा सवाल था। चलिए अब ये जो दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 का पहला, सूरज और उसके गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारे किस तरह वजूद में आए? किसी को जवाब मालूम है? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। जब यहाँ पे आए सवाल नंबर 2 का पहला सवाल, सैयारे कैसे वजूद में आए? सैयारे कैसे वजूद में आए? साढ़े चार अरब साल पहले एक बहुत तेज रफ्तार बादल खला में पैदा हुआ। यह बादल इंतहाई गर्म हवा और गुर्दो गुबार से मिलकर बना था। अपनी इंतहाई तेज रफ्तार नवा देख के दाविरी गर्दिश की वजह से इसके टुकड़े हुए और इस तरह सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे पैदा हुए। अरे वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, जितनी तारीफ की जाए आपकी काम है। चलिए अभी नेक्स्ट सवाल पर आते हैं कि जानवरों की 2 किस्म कौन सी है, या जानवरों की खसूसियात कौन सी है? हाँ भाई, बोलो बोलो। जानवरों में अमल तनफ़ुस होता है। जानवर ग़िज़ा हासिल करने के लिए या दीगर वजूहात से नक़ल व हरकत करते हैं। शाबाश, अंडे देने वाले जानवर, बच्चे देने वाले जानवर है ना, ये भी तो उनकी खसूसियात है ना। जानवर अंडे भी देते हैं और कुछ जानवर बच्चे भी देते हैं। शाबाश, वेरी गुड। अब चलिए हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमको कुछ कॉलम दिखाई दे रहा है, इसमें हमको निज़ाम शमशीद के सैयारों का नाम ढूंढना है। बहुत सारे कॉलम हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं अल्फाज को मिलाकर हमें सैयारों के नाम ढूंढना है। चलिए पहले कॉलम में हमें कौन से सैयारे दिखाई दे रहे हैं? पहले कॉलम में सैयारों का नाम ढूंढिए। मुश्तरी। शाबाश, ऊपर से नीचे है ना, नीचे से ऊपर, मीम शीन ते रे, ये मुश्तरी। शाबाश, वेरी गुड। अब हम दूसरे कॉलम में चलते हैं। दूसरे कॉलम में कुछ दिखाई दे रहा है, सैयारों के नाम पहचानिए। अतारुद, ऊपर से वेरी नीचे गुड। अतारुद। हाँ, अतारुद, एन तोए अलीफ रे दल, वेरी गुड। अब जरूरी है कि हर कॉलम में हमें है सैयारों के नाम मिले। चलिए अभी तीसरे कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है, सैयारों के नाम ढूंढिए तो। मिर्रीख, ऊपर से नीचे। मिर्रीख, नीचे से ऊपर मिर्रीख। मिर्रीख नहीं, मिर्रीख नीचे तो लाम है, तो तीसरे कॉलम में अगर नहीं है तो छोड़कर हम चलिए चौथे कॉलम की तरफ चलते हैं। जरूरी है कि हमें हर कॉलम में सैयारों के नाम मिले। चौथे कॉलम में कौन सा सैयारा दिखाई दे रहा है? चलिए ढूंढिए। मिर्रीख। मिर्रीख, हाँ शाबाश। चौथे कॉलम में हमें मिर्रीख दिखाई दे रहा है, लेकिन तीसरे कॉलम में नहीं है, है ना। मैं तीसरे कॉलम की बात कर रही थी। चौथे कॉलम में हमें दिखाई दिया है सैयारा मिर्रीख, मीम रे ये है, और जो है जो छोड़ देने का है ना। अब चलिए अब हम
पांचवें कॉलम की तरफ चलते हैं। ज़ोहरा है, ढूंढिए कौन सा सैयारा ज़ोहरा, है। ज़ोहरा वेरी नीचे से गुड, ऊपर। जोहरा जोहरा जोहरा, शाबाश। हाँ, उसकी स्पेलिंग हम करेंगे जे हे रे हे, और ते को हम शुमार नहीं करेंगे ना, क्योंकि जोहरा में ते नहीं आता है। शाबाश। इस तरह हम इस कॉलम में सैयारों के नाम को तलाश किया, मुश्तरी, अतारुद, मिर्रिक और जोहरा। एक तरह से हमारा ये खेल भी हो गया है ना, बड़ा मजा आता है ऐसा ढूंढने के लिए। हम इस तरह मुख्तलिफ नाम भी डाल सकते हैं, सैयारों के अलावा और भी दूसरे नाम डाल सकते हैं, फूलों के नाम, फलों के नाम, और भी दूसरे तरीके से हम इस खेल को खेल सकते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मुंदरजा झेल वाक़यात को ज़मानी तरतीब में लिखना है। जैसे देखिए, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है ना। इस तरह ये दिन जो है ना तरतीब से होता है ना, आता जाता है। तो इस तरह हमें यहाँ पर ना वाक़यात को तरतीब देना, सब आगे पीछे है। कि सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि क्या जमीन पहले वजूद में आई, क्या प्रोटोजोआ आया, या सैयारे आए। हाँ, दाल वाला ऐसे। आएगा। हाँ, बराबर, उल्टा सीधा सब हमको तरतीब देना है। तो चलिए पहले एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मुझे बताइए। 2 मिनट का टाइम के पहले में जमाने के हिसाब से या तरतीब के हिसाब से पहले कौन सा वाक़या पेश आया है ना। मिस दाल वाला, लास्ट हाँ, वाला तो दाल। नहीं, दाल वाला तो है, लेकिन पढ़ कर तो बताइए, दाल से हमें क्या मालूमात हासिल होगा। पढ़िए, पहले पढ़ेंगे तो अच्छा है, बट मजा आएगा। इंती 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 इंतहाई। इंतहाई गर्म और गुर्दो गुबार से मिलकर एक बहुत बड़ा तेज रफ्तार बादल खिला में पैदा हुआ। शाबाश, एकदम सही बोला आपने। सबसे पहले दाल, इससे ये बात अखज़ होती है कि यहाँ पर बादल जो है, बादल से कुछ जो है ना टकराए, गर्द गुबार है ना। फिर उसके बाद ये जो बादल खला में जो पैदा हुआ, तो उसके बाद क्या, किस चीज का ज़हूर हुआ, हमको अभी ढूंढना है। ये वाला सूरज, और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारे वजूद में आए। हाँ, शाबाश। इंतहाई गर्म हवा और गर्द गुबार से मिलकर एक बहुत बड़ा तेज रफ्तार बादल खला में पैदा हुआ, तो उसके बाद सूरज और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारे वजूद में। शाबाश, वेरी गुड बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जब सैयारे वजूद में आए तो क्या हुआ, अब आगे हम ढूंढते हैं, तरतीब इस देंगे। इस अलिफ वाला जमीन पर आबी ज़खायर वजूद में आए। हाँ, शाबाश। जब सारे वजूद में आए तो इसका मतलब जमीन का भी वजूद हुआ ना। तो फिर जमीन का वजूद हुआ तो वहां पर आबी जखायर का भी वजूद हुआ। शाबाश, ये तरतीब एकदम सही है। और उसके बाद जब जमीन पर आबी जखायर है ना वजूद में आए, तो उसके बाद क्या हुआ। जी मौला, कई किस्म के यखलवी जानदार पैदा हुए। अरे वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे आप। कई किस्म के यह खलवी जानदार पैदा हुए। शाबाश, वेरी गुड। अब ना इसका भी ना सवाल जवाब करके कॉपी में है ना याद कीजिए। हो सके तो अपने ग्रुप में भी भेजिए, ताकि दूसरे बच्चे इससे फायदा हासिल कर सके, है ना बच्चों। हाँ, ये है ना, सवाल जवाब लिख कर अपने ग्रुप में डालिए और याद भी कीजिए, क्योंकि अभी इम्तिहान भी हो रहा है ना, तो उसके लिए आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। हमारा ये लेसन यहीं पर ही खत्म होता है।